Part 2 of HCl. Now we'll start with the experiment to show that HCl gas is heavier than air. यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी जार लेंगे, उसके बाद कैंडल प्लेस करेंगे उसमें, जो कि बर्निंग कैंडल है. आफ्टर दैट वी विल टेक अनदर कंटेनर जिसमें कि ड्राई HCl गैस है. आप देख सकते हैं इसमें ड्राई HCl गैस है, एंड इसको पोर करेंगे टू द लोअर कंटेनर. You will see that HCl gas being heavier than air displaces the air from the lower jar and hence the burning candle is extinguished. यहाँ पर क्या हुआ है, HCl गैस क्योंकि heavier है एयर से, तो ये क्या करता है, डिस्प्लेस करता है एयर को फ्रॉम द लोअर जार. इस वजह से जो बर्निंग कैंडल है ये एक्सटिंग्विश हो गई है. Dear learners, exams are round the corner. To help you with your final preparation, Unacademy brings Power Packs, a revision series for ICSE class 9th and 10th, ISC class 11th and 12th. Top educators will take these revision series where they will focus on important and previous year questions. Classes will be conducted every alternate day. Also, if you wish, you can join any batch according to your preference. You can opt any subscription. A minimum of 3 month subscription is also available. Live classes by India's top educators, doubt solving sessions. You can ask your doubts via raise a hand feature, PDF notes, live tests and quizzes with analysis of your performance, recording of all live classes with unlimited access, all content subjects under one subscription, and many more will be provided under one subscription. Also, there is a big exciting news. An Academy is launching an Academy store for the very first time in Pusa Road, New Delhi. You can experience the offline Unacademy world and learn together. Do visit the store. I have put all the links in the description box. Use my code Aryushi10 to unlock for free. Also, you will get 10% off on any subscription. Let's crack it. ओके. अगर आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रखोगे ना इस लोअर जार में यहाँ पर, तो ये रेड हो जाएगा. अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में, दैट इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर. फर्स्ट आई टॉक अबाउट द apparatus. यहाँ पर हमने ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क ले रखा है फिल्ड विद ड्राई HCl गैस. Mouth of the flask has a rubber stopper with 2 holes for jet tube and for a dopper containing water. Blue litmus solution is placed in the trough below. यहाँ पर आप देख सकते हो ये blue litmus solution है, ठीक है, जो यहाँ पर रखा हुआ है इस ट्रो में. अब प्रोसीडर क्या होगा, हम ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे, ठीक है. ये ड्रॉपर में वाटर है तो ये स्क्वीज करके वाटर कहाँ पर एंटर करेगा, इस फ्लास्क में एंटर करेगा. ये वाटर एंटर हो गया. अब आप ये देखोगे, ऑब्जर्वेशन बताती हूँ. HCl गैस प्रेजेंट इन द फ्लास्क डिजोल्व इन वाटर. क्योंकि क्या है, मैंने आपको बताया सॉल्युबल है बहुत ज्यादा वाटर में. ड्यू टू इट्स हाई सॉल्युबिलिटी इट डिजोल्व्स एंड इट क्रिएट्स पार्शियल वैक्यूम इन द फ्लास्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इसकी हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से. अब जो बाहर का प्रेशर है, क्योंकि वो ज्यादा है, ठीक है, तो ये पुश करेगा इस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अपवर्ड. इस जेट ट्यूब से ऊपर ऊपर जाएगा ये ऐसे करके, फिर ये इमर्ज हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ट्यूब एज अ रेड फाउंटेन. यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ रेड फाउंटेन निकल गया. फिर से हम इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं. HCl गैस इज हाईली soluble in water and due to its high solubility it creates partial vacuum in the flask. Now the outside pressure being higher pushes the blue litmus solution up the jet tube which emerges out at the end of the tube as a red fountain. आउटसाइड प्रेशर क्योंकि हायर है तो ये ब्लू लिटमस को पुश करता है अपवर्ड और ये रेड फाउंटेन में निकल जाता है. सो इसका इन्फेरेंस ये है दैट HCl is highly soluble in water and acidic in nature. Now we'll start with chemical properties of HCl gas. Non-combustible है, that means does not burn. Non-supporter of combustion, it extinguishes a glowing splinter.
तो ये सपोर्ट नहीं करता है कंबशन को, ठीक है, बर्न नहीं करता है, ये एक्सटिंग्विश कर देता है ग्लोइंग स्प्लिंट को। हमने एग्जांपल देखा था बर्निंग कैंडल में। नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करेंगे, एक्शन क्या है इसके इंडिकेटर्स में। सो मॉइस्ट लिटमस चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड, मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक, फिनोफ्थलीन फ्रॉम कलरलेस टू कलरलेस, एंड एल्कलाइन वाला जो होता है वो पिंक टू कलरलेस चेंज होता है। मूविंग टू थर्मल डिसोसिएशन, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो HCl है वो डिसोशिएट होगा इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जब हम टेम्परेचर कितना रखेंगे, ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, दोनों साइड चल लेते हैं। अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो वापस आपको HCl मिल जाएगा। इसको हम रिवर्सिबल थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। नाउ रिएक्शंस ऑफ HCl गैस हम यहाँ पर देखेंगे। अमोनिया के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस रिएक्शन है वेयर टू गैसेस, वन इज बेसिक एंड वन इज एसिडिक, दे बोथ, इसमें से कौन है बेसिक बताइए, ये है NH3 बेसिक, HCl क्या है, एसिडिक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वन गैस इज बेसिक एंड वन गैस इज एसिडिक, दे बोथ फॉर्म HCl NH4Cl व्हेन दे रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि NH3 एंड HCl आर द टू गैसेस। NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड जो कि डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनाता है, ये सॉलिड फॉर्म हो गया। अब मेटल्स के साथ रिएक्शन जो है, HCl जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। Zn दैट इज जिंक प्लस HCl जो कि हमारी गैस है, ये कंबाइन होती है, देखिए ZnCl2 बनेगा और ये जो बचा हाइड्रोजन H2। ऐसे ही मैग्नीशियम एंड आयरन के साथ भी होगा। नाउ प्रेपरेशन ऑफ HCl एसिड laboratory method. HCl acid is prepared by dissolving hydrogen chloride gas in water using a special funnel arrangement, ठीक है। एक हम स्पेशल अरेंजमेंट यूज करते हैं HCl एसिड बनाने के लिए। यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, दैट इज बैक सक्शन एंड स्पेशल फनल अरेंजमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है बैक सक्शन, यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो HCl गैस जो है दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा सॉल्युबल है ये वाटर में, ठीक है। इफ अ डिलीवरी ट्यूब through which HCl gas is passed is directly immersed in water, the rate of absorption of HCl gas is high and hence partial vacuum is created in the tube. ये जो आप देख सकते हैं डिलीवरी ट्यूब हमने ऐसे सीधे डाल दी है, यहाँ पर हमने जैसे ही HCl गैस को पास करा, ठीक है, तो यहाँ पर HCl गैस का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है। ये पार्शियल वैक्यूम जब क्रिएट होगा ना तो इससे जो प्रेशर है बाहर का ज्यादा है क्योंकि, तो वो वाटर को पुश करेगा अपवर्ड्स, डिलीवरी ट्यूब के वापस पुश करेगा ऐसे करके, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा अपैरेटस है वो डैमेज हो सकता है, इसको हम बैक सक्शन कहते हैं। रिवाइज करते हैं, यहाँ पर हमने HCl गैस देखी है जो कि एक्सट्रीमली सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। अभी जो डिलीवरी ट्यूब है जिससे HCl गैस हम पास कर रहे हैं, ये हमने डायरेक्टली इमर्स कर दिया वाटर के अंदर, तो जो HCl गैस का एब्जॉर्प्शन है वो हाई है और इस वजह से पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा ट्यूब में। अब जो आउटसाइड प्रेशर है वो ज्यादा है, ठीक है, तो ये वाटर को क्या करेगा, पुश करेगा अपवर्ड्स इनटू द डिलीवरी ट्यूब एंड इससे जो हमारा अपैरेटस है वो डैमेज हो सकता है। दिस इज कॉल्ड बैक सक्शन। In order to avoid back suction, we use funnel arrangement. इससे क्या होगा, फनल अरेंजमेंट से दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक तो होगा प्रिवेंट्स और मिनिमाइजेस बैक सक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, और दूसरा प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने फनल रखा है। अब इसका प्रोसीजर समझते हैं। ये जो रिम है फनल का, इसको ऐसे रखना है कि ये वाटर के ट्रो को टच कर रहा है। अगर बैक सक्शन होगा भी तो जो वाटर है वो थोड़ा फनल के ऊपर जाएगा
और जो लेवल है बाहर का वो फॉल हो जाएगा, जिस वजह से एक एयर गैप आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, ये आपको एयर गैप दिख रहा है, ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, the pressure outside and inside equalize and the water which had risen in the funnel falls down again, क्योंकि जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो जाता है तो वाटर वापस नीचे फॉल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आपका जो वाटर है ना वो सैचुरेट ना हो जाए विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, जब वो सैचुरेट हो जाएगा तो आपका HCl एसिड फॉर्म हो जाएगा। Hence, hydrochloric acid is not prepared in the laboratory by passing hydrogen chloride gas directly through water, but prepared using special funnel arrangement. आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होता है ना, बैक सेक्शन की वजह से फिर से एयर गैप बना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर है वो इक्वलाइज हो गया, तो हमारा जो वाटर है वापस नीचे पहुंच गया फनल में। ये कंटिन्यू होता रहेगा प्रोसेस जब तक हमारा ट्रो जो है वो सैचुरेट ना हो जाए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, जो वाटर है ट्रो में। ठीक है, तो बस बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप थोड़ा रीड करेंगे तो आपको पॉइंट्स पता चल जाएंगे, बाकी मैंने आपको कीवर्ड्स बताई दिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है HCl एसिड की? इट इज कलरलेस, कोरोसिव एंड पंजेंट ऑर्डर। Solution of HCl in water forms a constant boiling mixture. ये नोट डाउन कर लो, जो HCl है ना सॉल्यूशन और वाटर जो है वो क्या बनाते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऑन बॉइलिंग द मिक्सचर इवॉल्व्स आउट द वेपर्स ऑफ बोथ एसिड एंड वाटर। और जो ये एसिड एंड वाटर जो आपका इवॉल्व हो रहा है ना, इसके वेपर्स वो सेम प्रपोर्शन है जैसा कि लिक्विड में था, इसलिए जो हमारा डाइल्यूट HCl है ना हम कॉन्सेंट्रेट उतना नहीं कर सकते, एक उसकी लिमिट होती है। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl एसिड। फर्स्ट है एज एन एसिड, जो कि हम डाइल्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोनोबेसिक है नेचर में। जो HCl है इट डिसोशिएट्स इन aqueous solution प्रोड्यूसिंग 1 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl है, डिसोशिएट हुआ H+ और Cl नेगेटिव, ये दोनों आपके आयंस बन गए हैं। अभी जो हाइड्रोजन आयन है व्हेन वी रिएक्ट इट विद वाटर देन इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन H3O positive. The presence of a hydrogen ion in HCl imparts acidic properties to the aqueous solution of hydrochloric acid. इसी वजह से आपके जो HCl है वो आपका एसिडिक है। नाउ अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर। अब जो हम इसमें थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा समझेंगे क्या है वाटर। क्या आपका मैंने बताया था पोलर सॉल्वेंट है, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है तो ये आयनाइज करेगा HCl मॉलिक्यूल को फ्री आयंस में। ठीक है, इसी वजह से जो हमने ऊपर डिसोसिएशन देखा है इसी वजह से हुआ है। ये वाटर क्या करता है, डिसोशिएट करता है HCl को H+ एंड Cl नेगेटिव आयन में। द सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर एग्जिबिट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो आप ये नोट डाउन कर लेना, HCl प्लस वाटर क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज भी दिखाता है और एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है, वही जो डिसोशिएट हो जाए आयन में, है ना। सेकंड, अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। टोलुइन की बात करेंगे। ये जो टोलुइन है ये पोलर सॉल्वेंट नहीं होता है, तो ये कोई प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता है, ना ये डिसोशिएट करता है मॉलिक्यूल को फ्री आयंस में। ठीक है, सो इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज नॉट एसिडिक। इस जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया है फर्स्ट पार्ट का। HCl gas is hence a covalent compound which behaves like an ionic compound in aqueous solution. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। We are starting with some reactions. ये आप ई बुक से भी देख सकते हैं। I have provided the e-book. ई बुक के सेक्शन में जाके आपको सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी।
तो ये नॉर्मल आपका जो मेटल है और HCl गैस है, जब ये रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स रिस्पेक्टिव क्लोराइड विद हाइड्रोजन गैस. ओके. एंड बाकी आप देख सकते हैं बेस प्लस एसिड ये सॉल्ट बनाता है विद वाटर. एंड बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे रिएक्शंस आपको लर्न करने हैं. एंड यू हैव टू नोट डाउन व्हेनेवर वी रिएक्ट HCl गैस विद कार्बोनेट इट फॉर्म्स H2O एंड CO2. हमेशा फॉर्म होगा ये दोनों. एंड जब हम सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ करते हैं देन H2O एंड SO2 इज फॉर्म्ड. सल्फाइड प्लस एसिड Na2S प्लस 2HCl ये क्या बना देगा? देखो कितना सिंपल है ये, क्योंकि ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. Na जो है, जस्ट अ सेकेंड, Na जो है ये रिएक्ट कर रहा है Cl के साथ, और जो ये S है ये H के साथ कर रहा है. ठीक है, तो NaCl plus H2S. and note down the colors also. Other reactions, AgNO3 plus HCl that gives AgCl, ये white PPT होता है. आपका ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिए. सोडियम थायोसल्फेट इट रिएक्ट विद HCl, यहाँ पर NaCl SO2 S मिलेगा येलो कलर का प्लस H2O. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस HCl दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड. यहाँ पर हम देखेंगे ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिससे कि हमें क्लोरीन गैस मिलेगी. नाउ क्लोरीन गैस इज ग्रीनिश येलो गैस. So these are some powerful oxidizing agents. MnO2 that is manganese dioxide, lead oxide, then red lead which is known as trilead tetroxide. Then this is potassium permanganate and this is potassium dichromate. ये सारे आपको reactions देख लेने हैं. एंड बैलेंसिंग थोड़ी इनकी टफ है तो देख लीजिए. जैसे 16HCl 14HCl सबको आपको हीट करना है in order to get salt plus water plus chlorine. So these reactions form the basis for the preparation of chlorine gas. Now a very very important reaction is there. HNO3 plus 3HCl gives NOCl plus H2O plus Cl. अब यहाँ पर आपको बैलेंस करना है. ये दोनों आपके कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए रिएक्टेंट्स. दिस विल फॉर्म नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड नेसन क्लोरीन. अब मैं आपको बता दूं कि इसको हम एक्वारीजिया कहते हैं. ओके, आपका ये मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated HNO3 and 3 parts of concentrated HCl, जब इनको रिएक्ट करते हैं तब ये सारे चीजें फॉर्म होती है. तो ये हमारा क्या है? एक्वारीजिया. And do you know that nascent chlorine reacts with noble metals forming the corresponding soluble chlorides. यानी ये जो गोल्ड है और ये प्लैटिनम है इट डिसॉल्व्स इन एक्वारीजिया. ठीक है, जो कि जबकि ये जो हमारे गोल्ड प्लैटिनम है दे आर इनसॉल्युबल इन ऑल अदर एसिड्स, बट एक्वारीजिया ही ऐसा एसिड है जो कि डिसॉल्व कर देता है नोबल मेटल्स को. फॉर HCl एसिड they may ask you NH3 plus HCl gives NH4Cl. ये हमने इतने बार पढ़ लिया है. डेंस वाइट फ्यूम्स होते हैं, अब तो आपको लर्न हो गया होगा. नाउ सेकंड इज एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट HCl. तो ये बनाता है AgCl दैट इज वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट है ये. ओके, प्लस HNO3. द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो कि हमारा AgCl है ये सॉल्युबल होता है एक्सेस NH4OH में. यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको रिएक्ट करा है AgCl को यहाँ से लिया ना और रिएक्ट करा है NH4OH के साथ. तो ये सॉल्युबल होता है एक्सेस NH4OH में एंड इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्युबल डायमीन सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड यहाँ पर वाटर भी फॉर्म हुआ है. नाउ थर्ड रिएक्शन जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ही रिएक्शन आ गया है फिर से. MnO2 plus 4HCl जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है. हीट देंगे तो MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. मैं बैलेंस करके बता रही हूँ पूरा. ये सारे ही रिएक्शन जो मैंने आपको कराए सारे ही बैलेंस्ड हैं. सो दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट HCl एसिड कंटेन्स क्लोरीन जो कि ग्रीनिश येलो गैस है. नाउ यूजेस ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइज, ड्रग्स, पेंट्स इसमें काम आता है. AgCl जो होता है सिल्वर क्लोराइड, दिस इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिक फिल्म्स. थर्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च. अब जनरल यूजेस क्या है, जो HCl एसिड है ना डिसॉल्व करता है कैल्शियम फॉस्फेट को, जो कि हमारे बोन्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नाउ HCl डिसॉल्व्स मेटालिक ऑक्साइड. जो कोटिंग होती है, इम्प्योरिटीज होती है मेटल में. अगर हमारा कोई मेटल है तो यहाँ पर की जो कोटिंग है, यहाँ की जो इम्प्योरिटी है, HCl उनको डिसॉल्व कर देगा, जिससे कि हमारी क्लीनिंग हो जाती है सरफेस की. प्रेपरेशन ऑफ एक्वा रीजिया, वी हैव ऑलरेडी डन दिस मोर देन 2 times. HNO3 प्लस HCl, यहाँ पर 3 HCl है. ठीक है. 1:3 के वॉल्यूम में 2H2O फॉर्म होगा. NOCl जो कि हमारा नाइट्रोसिल क्लोराइड है, एंड नेशन क्लोरीन. एंड हमने ये भी पढ़ा था, गोल्ड जो है या प्लैटिनम जो है वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. ये ऐसा है कि दूसरे एसिड्स में नहीं होगा ये गोल्ड प्लैटिनम, पर यहाँ एक्वा रीजियम हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर लेक्चर. अब हम नेक्स्ट हमारे और भी चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप वो देख सकते हैं. थैंक यू.